Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So most of the CLAT preparation, during their preparation, even if they want to study hard, sometimes are not able to make a proper schedule for themselves because we don't know how to divide our day, what are certain things to be done in the entirety of the day. Now this particular 888 rules helps you understand as to how would you divide your day and what are certain things you can do without compromising on the most important things. For example, अगर हम स्लीप की बात करें तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि हम दिन में 4 घंटे ही सोएंगे और बाकी टाइम पढ़ेंगे और यू कुड से बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो करना भी जरूरी है. Now the schedule differs for a school going student preparing for CLAT and for a dropper preparing for CLAT because droppers certainly would have more time as compared to a school going student. So let me help you understand the schedule for both these things and how can these two set of students use this 888 rule to really maximize their potential and efficiency in the preparation also. So what is 888? We have 24 hours per day, right? How do you divide that? The first 8 I talk about sleep. ठीक है, सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है थोड़ी देर सो जाते हैं फिर उठ के डिसाइड करेंगे. So 8 hours of sleep is something that you can take during the day. It's not a problem and in fact it's important to do other things efficiently. So the first 8 in case of freshers as well as for droppers would go to sleeping. Then the next 8 hours in case of school going students would go school itself, right? कि आप लोग लेट्स से सुबह 6-7 बजे उठ जाते हो, तैयार होते हो, स्कूल जाते हो, वापस आते हो 2-2:30 बज जाते हैं, तो पूरा अबाउट 8 hours वहां चला जाता है. Now this is an advantage for those people who have taken a full drop year. आप लोग क्या कर सकते हो in particular 8 hours में you can do more revision, mock tests and practice. So if you are taking a drop year this year, my suggestion to you would be to start doing 2 to 3 mock tests every week. आप लोग एक वीक में ऑल्टरनेटिवली 2 कर सकते हो और एक वीक में ऑल्टरनेटिवली 3 कर सकते हो. Whereas अगर आप स्कूल जा रहे हो तो यू कैन डू 1 मॉक टेस्ट अ वीक फॉर नाउ फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स और धीरे धीरे करके आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी. नाउ ये स्कूल वाला जो 8 hour वाला पॉइंट है फॉर द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट यू शुड नॉट गो टू स्कूल मोर देन 5 days a week. अगर आपको ऑलरेडी 5 days a week स्कूल है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर 6 days a week है, find any one day where you can take an off because स्कूल और क्लैट बहुत अच्छे से नहीं मैनेज हो पाएगा आपसे. इफ यू ट्राई टू जगल बोथ ऑफ देम इट वुड बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू, राइट? तो प्लीज कोशिश करो दैट यू मेक इट 5 days a week. नाउ द नेक्स्ट 8 hours इज फॉर बोथ सेट ऑफ स्टूडेंट जो काफी ज्यादा सिमिलर रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल बोथ सेट ऑफ स्टूडेंट्स में हैव सर्टेन क्लासेस टू अटेंड, है ना, कि आप किसी कोचिंग के पार्ट हो, आप वहां से क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो आपका 2 घंटा 3 घंटा हो सकता है दिन में वहां चला जाए, राइट? उसके बाद में मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था where I discussed that you need to make a proper strategy of preparation wherein you study 2 subjects a day and you do current affairs every day. So let's say today is the day where you do English and legal reasoning. Now English and legal reasoning mein if you already know the concepts, all you have to do is solve sectional tests or maybe revise ones if you're not sure. For those who have not yet done the topics, आप लोग पहले concepts revise करो, है ना? तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका let's say 8 hours का next part है ना, उसमें मैं 2 to 3 hours classes को दे देता हूँ और उसके अलावा जो 5 hours बचते हैं उसमें से और 3 hours निकाल लो, ठीक है? Take 3 more hours out of it because उन 3 घंटों में आप properly हर चीज को प्रिपेयर कर सकते हो, चाहे वो प्रैक्टिस वाइज हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट वाइज हो, चाहे वो करंट अफेयर्स का नए करंट अफेयर्स या रिवीजन हो. तो वो 3 hours एक्स्ट्रा प्लस क्लासेस, अभी इतना काफी है. बट ये हर रोज होना चाहिए, 7 days a week, not even a Sunday should be an off because Sunday is a mock test day. तो दिन आप mock test दोगे, उसको एनालाइज करोगे, उस दिन करंट अफेयर्स का रिवीजन वगैरह होता है, तो इसीलिए every single day you have to do these things, right? Particularly जो लोग ड्रॉप ईयर ले रहे हैं ना, आपके लिए एक एडवाइस है मेरे लिए आपके लिए एडवाइस है मेरी तरफ से दैट यू शुड पिक अप एनी एक्टिविटी ऑल्सो. चाहे दिन में उसको आधी 1 घंटा दो, इट कुड बी एनीथिंग, बट थोड़ा सा कोशिश करो कि वो एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी हो, है ना? इट कुड बी गोइंग टू द जिम, इट कुड बी प्लेइंग समथिंग, कोई भी स्पोर्ट आप अंडरटेक कर सकते हो. आपको बाहर जाकर अपने दोस्तों से मिलना अच्छा लगता है, वो कर सकते हो, बट आई थिंक एवरी डे दैट इज नॉट पॉसिबल. तो कोई भी एक ऐसा आप काम ढूंढ सकते हो जो आपको थोड़ा सा कह सकते हो लाइफ को मोनोटोनस ना बनाए. बिकॉज इफ यू आर पर्टिकुलरली प्रिपेयरिंग फ्रॉम होम, there are students who tend to believe कि यार ये monotonous हो रहा है, the preparation is not going anywhere and I feel really boring about it, boring about the entire day, I'm really bored. तो इसीलिए
एक कोई भी एक्टिविटी 1 घंटे की मैक्सिमम आप उसको पकड़ सकते हो और उसको परस्यू कर सकते हो. दैट विल हेल्प यू टेक सम माइंड ऑफ द प्रेपरेशन एंड विल यू कुड से एनर्जाइज, यू विल रिफ्रेश योर माइंड एज वेल. तो वो करना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो सिंपल 8-8-8 टेक्निक लगाओ. यहां पर सबसे बड़ी गलतियां ये होती है कि या तो हम ठीक से सो नहीं रहे हैं या फिर हम बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं. अगर आप अपना टाइम टेबल को 3 पार्ट में डिवाइड कर लोगे, है ना, तो 1 पार्ट तो स्लीप का ही है. ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करके जो मेरे को पसंद है, वीडियो गेम खेलना पसंद है ना, मेरे को अपना प्ले स्टेशन खेलना पसंद है तो मैं वो कर लेता हूँ. नहीं, प्लीज डोंट डू दैट. स्लीप पूरी होनी चाहिए. बाकी के जो 8 घंटे स्कूल के वो भी आप अवॉइड नहीं कर सकते. जो लोग ड्रॉप ईयर ले रहे हैं, आप लोगों को एक क्लियर एडवांटेज है ना कि आप लोग अच्छे से, है ना, प्रॉपरली उसको आगे बढ़ा सकते हो, अच्छे से ले सकते हो, है ना, कि यू कैन डू दीज बेसिक थिंग्स एज वेल. कि आप टेस्ट ज्यादा करो, आप सेक्शनल टेस्ट करो, जो 8 आवर जो जनरली स्कूल वाला बच्चा स्कूल जा रहा है तो आप उसका एडवांटेज लो. राइट, फॉर डूइंग मोर मॉक टेस्ट वी हैव रिसेंटली रिलीज्ड एन ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज आल्सो, जहां पर पूरे मॉक टेस्ट ओएमआर वगैरह आपके घर पर भेजे जाएंगे और आप अपने घर के कंफर्ट में पूरे क्लैट स्टैंडर्ड के साथ में उसको कर सकते हो ऑन ओएमआर. सो दैट वुड आल्सो हेल्प यू अ लॉट. If anybody, be it a dropper or a fresher, would want to study everything from scratch with us, we have this particular course that we have launched recently called Anirudh and Anirudh Plus. You guys can become a part of these particular batches. They will guide you immensely for an entire preparation and it will become a cakewalk for you. ठीक है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपने प्रेपरेशन को आगे बढ़ाना. ठीक है, तो वी विल बी गाइडिंग यू टिल द एंड ऑफ द प्रेपरेशन. वी हैव ऑल द एजुकेटर्स हु आर देमसेल्व्स द अलुमनाई ऑफ सर्टेन नेशनल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया. तो उनको पता है क्लैट कैसे क्लियर होता है, with mock tests, with concepts, with strategies and everything. Extremely affordable. You can use my code Malpani to get more discounts and number पर contact भी कर सकते हो. उसके अलावा we have something interesting called the Shakuntala Scholarship that gives you a 100% refund of your fees if you get an all India rank under 300 in CLAT. तो अगर आपको वो आता है तो we will give you 100% of your fees refund. We don't want a single penny out of meritorious students in this particular exam. Okay? All the best guys. अगर कोई भी डाउट होता है शेड्यूल को फॉलो करने में या फिर शेड्यूल को समझने में भी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, mention that in the comment box. I'll be happy to take it from there and answer it for you. Keep smiling, keep working well. Please try to stay very consistent, है ना. एंड में जाके बस इस बात की गिल्ट ना हो कि अगर 2 महीने पहले और स्टार्ट कर लिया होता तो शायद मैं अच्छे से कर पाता, है ना. ये गिल्ट बड़ी अच्छी नहीं होती है. तो कोशिश करो कि अभी से ही एवरी सिंगल डे, अगर आप सीरियस नहीं थे आप सीरियस हो जाओ. एंड नाउ इज द टाइम टू एक्चुअली पुट इन दैट गियर जहां पर हम एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ अब प्रिपेयर करेंगे. ऑल द बेस्ट गाइस.